So welcome to our second session of NMAT, where just like the previous one, you and I got down together and worked on VA and VR. A large chunk of that was verbal reasoning, a bit of it was verbal ability, and I plan to continue along the same vein so that you are absolutely ready for your NMAT when the day arrives. So just to give you a quick recap in case you missed out. So when it comes to NMAT, we get 28 minutes for the VRC section, and that we are supposed to answer 36 questions. And here is the breakup of those questions. So it is a test of speed, and unlike all the other exams, you cannot skip a question. It's a computer adaptive test, remember. So it is necessary for you to attempt everything, and thus speed becomes even more critical. You cannot even really pick and choose your questions. So this was last year. Of course, there can be certain variations. There are some other question types that can be used. And you of course had vocabulary and grammar apart from RC and para-jumbles that you've already prepared for in the CAR exam. And apart from that, you also have a reasoning section where you get 40 questions for these 40 minutes for these 36 questions. And it's usually an even 50-50 split between verbal and non-verbal reasoning, and these are the kind of questions that were asked last year, and these are the ones that you'd usually expect to get in the exam. And therefore you and I of course go ahead and work a little more on these particular variety of questions. So here are the directions to the first 4 questions. Go ahead, give it a read. Now, this is a variety that we typically call a strong and weak argument question, right? Where you need to go ahead and look at so you have a proposal disguised as a statement, and then you have 2 arguments following it. They can be supporting arguments or opposing arguments, or as is usually the case, you have one supporting and one opposing argument. So you need to decide which ones of these are strong and then go ahead and answer accordingly. So I would suggest that you pause the video right here, answer this question, then come back for a discussion and we'll move on. Ready? Pause करके solve किया ना, फिर आए ना, देख लेना अगर नहीं किया तो अभी भी मौका है, कर लो. चलिए. So the statement is, should dams be built on rivers? So first says no. So this is an opposing argument. It says that no, we should not build dams on rivers. Why? Because some dam projects have proved to be unsuccessful in recent years. Now come to think of it, the assumption here is that if some dam projects have proved unsuccessful in recent years, then all the upcoming dam projects will also be unsuccessful or have a high chance of becoming unsuccessful. Is that assumption very sound, very solid? No. The assumption is questionable. See, come to think of it, if some have proved to be unsuccessful, it means that the rest of them have proved to be successful. So on the balance of probability, chances are that it will be successful. On top of that, who knows, you may have learned from these mistakes, and that can enhance your chances of success even further. So the first one is a weak argument. Let's look at the second one. Second says yes, dams should be built. Why? Because they are beneficial in checking floods and conserving soil. And the assumption is that these two are things which are beneficial for the society and our civilization, the people who live there. And I think the assumption as well as the premise are both pretty solid, pretty sound. So second is going to be a strong argument here, and therefore our answer to this question must be option B. Here is the next one. Once again, hit pause, answer, come back. So I hope you are ready now. So let's check. Is globalization beneficial for developing countries? The first one is a supporting argument. It says that, oh yes, it is beneficial because globalization offers economic growth opportunities. But then what is this? It has a but. But
It may exacerbate inequalities and exploit labor in developing nations. Yeah, a supporting argument gives you a premise and then tells you about the shortcomings. This is definitely, if you look at what is written here, it does not build a strong case for globalization. देखो जो भी प्रेमिसेस दी हुई है ना उनको बड़ा अनएम्बिगुअसली क्लियरली कंक्लूजन को सपोर्ट करना चाहिए. इसमें पहला पार्ट सपोर्ट कर रहा है और जो बाद का पार्ट है सेकेंड हाफ है वो अपोज कर रहा है. सो दैट इज रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट. इसकी वजह से ये हो गया वीक. ये है अपोजिंग. ये सेज नो, ग्लोबलाइजेशन ठीक नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, अच्छा नहीं है. क्यों? क्योंकि इट कैन लीड टू कल्चरल होमोजेनाइजेशन. देखो कल्चरल होमोजेनाइजेशन क्या होता है कि कल्चर सिमिलर हो जाए, है ना. जैसे अगर आप 100 साल पीछे मुड़ करके देखेंगे तो इंडिया में एक खास तरह की वेशभूषा, कपड़े पहनावा था और सारे एरियाज में अलग अलग कंट्रीज में बहुत अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते थे. इनफैक्ट इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. यहाँ ही बहुत एरियाज में अलग अलग कपड़े पहने जाते थे. बट अब देखें तो सब जगह होमोजेनस हो गया ना. लोग बोलते हैं वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से अब मोरलेस सेम हो गया. सब वही जीन्स टी शर्ट पहन रहे हैं, पैंट शर्ट पहन रहे हैं, मोरलेस कॉमन सा हो रहा है. तो और इसी के अलावा बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ पे हैलोवीन मनाया जाता है, हाँ, विच इज़ अ वेरी यूनिकली वेस्टर्न वर्ल्ड फिनोमिना. तो वो है कहीं ना कहीं कल्चर कॉमन होती जा रही है और वहां भी ऑफ कोर्स दिवाली मनाई जा रही है. तो ऐसे तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रही है एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी. तो देखो कल्चरल होमोजेनाइजेशन में एक तो डू वी इज सो यहाँ पे अजम्पशन है कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन इज नॉट अ गुड थिंग, इज नॉट अ बेनिफिशियल थिंग, विच इज राइट. आप अपना एक यूनिक फ्लेवर बचा करके रखना चाहती है हर कल्चर. दैट इज व्हाट सेपरेट्स वन सिविलाइजेशन फ्रॉम अनदर, वन ग्रुप फ्रॉम अनदर. तो ये तो चलो फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं. लेकिन इसके बाद इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, दैट्स डेफिनेटली नॉट गुड. इफ एनीथिंग अंडरमाइंस लोकल इंडस्ट्री एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड. तो खासतौर पर ये दो चीजें बहुत क्लियरली इम्पैक्टफुल हैं इस कंक्लूजन के लिए. तो ये ऑन द बैलेंस हमारा एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो जाएगा. तो हमारा आंसर यहां भी होगा ऑप्शन बी. लेट्स मूव ऑन. ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3. शुड पीपल रिटायर फ्रॉम देयर जॉब्स अर्ली? पॉज कीजिए, देखिए स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है, फिर वापस आइए, फिर चेक करते हैं. So I hope that gave you enough time. You took your time and answered this. So yes, people should retire and pursue other interests. अब देखो देखने में यहाँ पे लग रहा है कि premise है, but all it says is it repeats the conclusion. People should retire from their jobs early because people should retire and pursue other interests. But why? आप pursue other interests के लिए retirement mandatory क्यों है? इसमें यही एक नया पार्ट है, but इसके लिए retirement जरूरी थोड़ी ना है. So कोई खास support ये provide नहीं कर पा रहा. So one half merely repeats the conclusion, paraphrases the conclusion, the other one gives you something which is pretty irrelevant. मतलब इसमें assumption ये है कि without retirement you cannot pursue other interests. तो करने हैं तो retirement लेनी है, but ये तो assumption ठीक नहीं है. Then let's have a look at second. No, it is very risky to retire early. Why? As they will become dependent on others very early in their life. तो यहाँ पे अजम्पशन ये है कि पोस्ट रिटायरमेंट इंसान दूसरों पे डिपेंड करने लग जाता है. इज दैट ट्रू? भाई मैं 40 की एज में रिटायर हो गया तो मैं 40 में लोगों पे डिपेंड करूंगा. 50 पे होता 50 पे, 70 पे होता 70 पे, ऐसा क्या? नहीं. You're retired does not mean that you've become dependent. You're retired merely means that you have chosen not to have a fixed workplace that you go to every day. So even this is weak. तो यहाँ supporting opposing दोनों argument weak हैं. तो हमारा आंसर हो जाएगा D. Neither first nor second is strong. And now let me take you over to the next question. Go ahead, have a look at it, answer this और फिर देखते हैं कि क्या किया जाना चाहिए. यहाँ पॉज करो, आंसर करो. इसमें रेडी? तो इसमें एक डिफरेंट चीज आई. एग्जाम में नॉर्मली 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, पर कभी कभी ठीक है वेरिएशंस आ सकती हैं, कम ज्यादा हो सकता है. सो जस्ट टू मेक यू रेडी फॉर दैट,
In this particular case, instead of giving you 2 arguments, I have introduced 3. तो थोड़ी सी लेंथ बढ़ी, प्रोबेबिलिटी कम है इस तरह 3 आने की, मगर जस्ट इन केस आ जाए यार, कभी पता नहीं चलता है. सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. तो आइए देखें, शुड सेंसरशिप बी मेड कंपलसरी फॉर द इंडियन वेब सीरीज इंडस्ट्री? फर्स्ट है यस. क्यों? वाइड रीच है, वेब सीरीज एंड कंटेंट ऑन डिजिटल मीडिया इज एक्सेसिबल टू ऑल. Children are at a major disadvantage when they view content that is related to violence, strong language and sex. बहुत valid concerns हैं, हाँ, कि accessible है सब तक, खास तौर पे बच्चों के लिए चीजें देखना अगर नुकसानदेह है तो सेंसरशिप होनी चाहिए. सो देयरफॉर स्ट्रॉन्ग. देखो इसमें हम अपना बायस एक बार के लिए साइड पे रखेंगे. इफ एनीथिंग इज एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन, इट शुड एटलीस्ट बी मेड चाइल्ड फ्रेंडली. सेकेंड, नो द गवर्नमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज ट्राइड टू डू इट एंड फेल्ड मिजरेबली. ये बोल रहा है बाकी लोगों ने किया, फेल हो गए, तो मतलब क्या हम करेंगे तो हम भी फेल हो जाएंगे? कोई लॉजिक नहीं बन रहा है ना. इट सेज बाकियों से नहीं हुआ तो तुमसे भी नहीं होगा. ये तो पेटेंटली वीक आर्ग्यूमेंट है. और आइए सी देखें, नो व्हेन देयर इज सो मच अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ऑलरेडी, व्हाई शुड वी रेगुलेट आवर वेब सीरीज इंडस्ट्री? तो ये बेसिकली बोल रहा है यहाँ पे इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन है. बोला जब इंटरनेट पे सब कुछ है ही तो वेब सीरीज पे भी होने दो यार. कहीं एक जगह कुछ गलत हो रहा है तो दूसरी जगह भी होने दिया जाए. एक चीज जिसे आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं वहां कुछ गलत है, तो दूसरी जगह जो आप रेगुलेट कर सकते हैं वहां भी गलत होने दें. दैट्स द assumption here, right? And that's a highly questionable assumption, जिसकी वजह से आपका थर्ड आर्ग्यूमेंट भी वीक होगा. एंड दैट इज व्हाई यहां सिर्फ फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. So let's now go ahead to our question number 5. But here are the directions for the next 2. You've been given a statement or statements followed by some conclusions. Choose as your answer the conclusions that logically follow. और उनको आंसर मार्क कर दीजिएगा. तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई द इन्फरेंस टाइप का ही सवाल है. इनफैक्ट उसका थोड़ा लो कॉम्प्लेक्सिटी वर्जन है. Why don't you go ahead, have a look at it and then we will see. So pause the video, answer and then join me. Ready? So many schools now include physical education classes, extracurricular activities like sports and arts programs as part of their curriculum. These activities help develop physical, social and creative skills. बहुत बढ़िया. Then first, physical education, sports and arts programs are essential for the overall development of children. So true, false, can't say. तो देखिए हमें क्या पता है, ऑल दीज थिंग्स हेल्प डेवलप. अब सवाल ये है कि इफ समथिंग हेल्प्स यू डेवलप एक्स, डज दैट मीन दैट इट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्स? अगर कोई चीज मददगार है तो क्या इसका मतलब ये है कि जरूरी है? एग्जाम्पल ले ले. अगर मैं आपको बोलूं कि यार ड्रिंकिंग मिल्क हेल्प्स यू बिकम स्ट्रॉन्गर, तो डज दैट मीन दैट इफ समबडी डज नॉट ड्रिंक मिल्क ही वोंट बी एबल टू बिकम स्ट्रॉन्ग? नहीं ना. सो हेल्प्स से एसेंशियल तक नहीं जा सकते आप. कंट्रीब्यूट कर रही है पर इसकी एब्सेंस में रिजल्ट आएगा ही नहीं, इसकी कोई सर्टेनिटी, इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो इस एसेंशियल की वजह से द लेबल दैट वी विल अप्लाई इज कांट से. आगे देखते हैं. चिल्ड्रन आर ओनली इंटरेस्टेड इन फिजिकल एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज, नॉट एकेडमिक्स. यहां पे वो एकेडमिक्स वर्सेस इन सब का कंपैरिजन है कहीं? नहीं. तो इसके लिए तो बहुत ही क्लियरली डेटा इनसफिशिएंट है, तो ये भी कांट से. सो सिंस बोथ ऑफ देम आर कांट से, दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी. नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस. हाँ, ईदर और के लिए एक प्री रेक्विजिट होता है दोनों कांट से हो और सेम टर्म्स हो. तो यहाँ पे ऑब्वियसली सेम टर्म्स तो है नहीं. हाँ, और वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बनाना वो सिलोजिज्म में जैसा होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास में, तो वो यहाँ पे है नहीं. तो एंड देयरफॉर वी कैन सेफली इग्नोर इट. हियर इज द नेक्स्ट वन. वंस अगेन आई वांट यू टू हिट पॉज, answer this question and then come back. चलिए देखें.
So according to Niti Aayog, the public policy think tank of India, while bilateral trade with partner countries like Japan, South Korea and the ASEAN region increased following the signing of trade deals, imports rose more sharply than exports, leading to favorable gains to India's trade partners. So first, the trade deals benefited India's export sector. True. मैं इसको true क्यों बोल रहा हूं? देखो, imports rose more sharply than exports. तो यानी कि import और export दोनों बढ़े, import थोड़ा ज्यादा बढ़ा, हाँ, या ज्यादा तेजी से बढ़ा, तो पर बढ़ा तो एक्सपोर्ट भी ना, और अगर एक्सपोर्ट बढ़ा है तो एक्सपोर्ट सेक्टर को फायदा तो होगा. सो ट्रू. सेकंड, जापान, साउथ कोरिया एंड द आसियान बेनिफिटेड एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिया. तो देखिए यहां पे जब हम बोल रहे हैं कि ये जो अनफेवरेबल गेन्स मिले इंडिया के ट्रेड पार्टनर्स को, तो अनफेवरेबल गेन्स मिलने का मतलब उनको ज्यादा फायदा हुआ हमसे, हमको कम फायदा हुआ. सो दिस इज ऑल्सो एज अ रिजल्ट ट्रू. तो चूंकि दोनों ही ट्रू हैं, हमारा आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो. और आगे चलते हैं. दीज आर द डायरेक्शंस फॉर द नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस. आप पढ़ लीजिए एक बार डायरेक्शंस. सो ये जो है ये आपके बेसिक सिलॉजिज्म्स वाले सवाल हैं, जिसमें आपको पता है कि वेन डायग्राम्स बनाते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम केस देखते हैं, और अगर कहीं सिर्फ 2 ही प्रेमिसेस हों और कोई भी कंक्लूजन पॉसिबिलिटी टाइप का ना हो, तो आप वो रूल्स भी यूज कर सकते हैं. द जुगाड़ मेथड कैन देन ऑल्सो वर्क इन प्रोवाइडिंग यू विद द आंसर्स. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई डोंट यू गो अहेड, आंसर दिस एंड देन वी विल टॉक. डन. तो चलिए आइए इसको साथ में देखते हैं. लेट मी जस्ट क्लियर अप सम स्पेस. सो ऑल बॉल इज रैट, all rat is feather, and no feather is a troll. So that's a minimum overlap diagram. तो चलिए देखें. Some feather are ball. तो देखो some feather are ball इसमें ट्रू है, और अगर मैक्सिमम ओवरलैप करेंगे तो बॉल और फेदर इक्वल हो जाएंगे, बढ़ के बराबर हो सकता है फेदर, है ना. तो इस केस में भी सम फेदर आर बॉल ट्रू रहेगा, तो ये मिनिमम मैक्सिमम दोनों केसेस में ट्रू है. सो देयरफॉर इट इज ट्रू. सो फर्स्ट हमारा वैलिड है. सेकंड देखते हैं. सम ट्रोल आर रैट. तो आप देख रहे हैं मिनिमम ओवरलैप में ट्रोल और रैट ओवरलैप है ही नहीं इनमें, दे आर कंप्लीटली सेपरेट. तो मिनिमम ओवरलैप में अगर ट्रू नहीं है तो यही बोल सकते हैं कि इनवैलिड है, राइट. तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बचा? ए, ओनली फर्स्ट फॉलोज. लेट मी टेक यू ओवर टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हियर इट इज. गो अहेड, आंसर दिस एंड देन वील सी. रेडी? चलिए आइए काम करें इस पे. लेट मी मेक सम स्पेस. सम क्रो आर डॉल, ऑल डॉल आर क्लव, सम क्लव आर रूट. अच्छा, सी से 2 चीजें आ गई, तो चलो. सम क्रो आर डॉल, ऑल डॉल आर क्लव, ये लीजिए, एंड सम क्लव आर रूट. तो ये बनेगा हमारा मिनिमम ओवरलैप डायग्राम इस पर्टिकुलर केस में. तो अब अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं. सम डॉल आर रूट, तो डॉल और रूट मिनिमम ओवरलैप में ओवरलैप, इस मिनिमम ओवरलैप डायग्राम में ओवरलैप नहीं करते, तो फर्स्ट कंक्लूजन यहां पे फॉल्स, तो इसे इनवैलिड बोल दें. सम क्रो आर क्लव, ये रहा क्रो, ये रहा क्लव, है ना. तो मिनिमम ओवरलैप में तो ट्रू है. मैक्सिमम ओवरलैप देखें, सो व्हेन वी से सम क्रो आर डॉल, क्रो और डॉल सेम हो सकते हैं, और व्हेन यू से ऑल डॉल आर क्लव, डॉल और क्लव भी सेम हो सकते हैं. तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम ओवरलैप में ऑल क्रो आर क्लव या ऑल क्लव आर क्रो हो जाएगा, और उस केस में सम क्रो आर क्लव यहां भी ट्रू रहेगा. सो दिस इज ट्रू इन द मिनिमम एज वेल एज द मैक्सिमम ओवरलैप सिनेरियो. तो ये वैलिड है. एज ए रिजल्ट यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी.
Let me take you through the next one now. Here it is. Go ahead, answer this और बताइए क्या होना चाहिए. Ready? देखा जाए? तो चलिए, let me once again make some room for it. All legs are hands, no hands are heads. Only a few heads are fingers. Okay, so all legs are hands. No hands are heads. ये लीजिए. And then only a few heads are fingers. So only a few का मतलब होता है some. So some heads are fingers. तो ये रहा आपका minimum overlap diagram. Let's start. No legs are heads. ये रहे leg, ये रहा head. Minimum overlap में फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है. मैक्सिमम ओवरलैप में क्या होगा कि लेग ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू हैंड हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जा सकता, और हैंड और हेड ओवरलैप करेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम ओवरलैप में भी ये ओवरलैप, ये लेग और हेड बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेट रहेंगे. सो दिस इज डेफिनेटली ट्रू. सम फिंगर्स कैन बी हैंड्स. अब ये बोल रहे हैं सम फिंगर्स कैन बी, मतलब कि यार क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक वेन डायग्राम ऐसा बने जिसमें फिंगर और हैंड ओवरलैप कर जाए. तो देखो अभी मैंने फिंगर्स यहां बनाया है. कंस्ट्रेंट क्या है? कम से कम एक फिंगर हेड के अंदर होना चाहिए. ऐसे भी तो बना सकता हूं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. और इस पॉसिबिलिटी में देखो एक फिंगर हैंड है. So is it possible for at least one finger to be inside hand? Absolutely yes. तो ये भी हमें acceptable है, and that is why our answer here now will be both first and second follow. And with that, here is our fourth syllogism question for you. So go ahead, solve this, and then we'll talk. Ready? चलिए. So once again let me make some room. All months are decades, all months are years, all years are days. Okay, so decades and days, D से दो हैं. So पूरा लिखेंगे भाई, all months are decades. No months are years. तो month और year overlap नहीं करेगा, तो ये लाइन month और year के बीच में जाएगी. All years are days. तो ये हमारा मिनिमम ओवरलैप डायग्राम हो गया. अब सम डेज आर नॉट मंथ, बिल्कुल ट्रू है. क्यों? क्योंकि देखो व्हेन यू से ऑल ईयर्स आर डेज, तो सम डेज आर ईयर्स. कुछ डेज ऐसे हैं ना जो यहां पे हैं ईयर्स के अंदर, और ईयर और मंथ ओवरलैप करते नहीं, तो ये वाले कभी भी मंथ नहीं होंगे, तो ये ट्रू हो जाएगा. जैसे मर्जी कर लो, वैलिड ही रहेगा ये. और सम डेकेड्स आर नॉट ईयर्स, एग्जैक्ट सेम थिंग. मंथ और ईयर ओवरलैप करते नहीं है. कुछ डेकेड्स ऐसे हैं जो मंथ के अंदर है, तो ये कभी भी ईयर्स का पार्ट नहीं होंगे. दिस इज ऑल्सो वैलिड. तो हमारा आंसर यहां पे हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो. सो दैट्स फॉर क्वेश्चन 10. सो विद दिस नाउ लेट्स डाइव ओवर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. And here it is on your screen, the directions. So what do we have for questions 11 and 12? Well, we happen to have a question variety that we are very familiar with thanks to the CAT exam. After all, this tests you on parajumbles. The only difference is that now this is going to be multiple choice. So that makes it easier. That ensures that we are able to solve it faster. So if you don't use options, you may end up missing out on a trick or two. So here is the first one. Go ahead, pause the video, answer the question, come back, and then we'll talk. Ready? So let's go. Let's read the sentences. The process would still remain more or less the same, where we go ahead, we focus on getting the clues out and then connect. So however, such wagers have left the field unclear where to look for alternatives should it fall short of its own high expectations as practitioners. So if you've gone through this, and then in this we would have a more adventurous physics,
one that accepts, then in response. Now you notice in response to what? We need a humbler physics. Now there is no doubting the immense achievement of fundamental physics. Further, its speculative wagers may yet to be rewarded with time. Notice this. It's speculative wagers, however such wagers. So that essentially gives you D and A as your mandatory pair. So do we have it? No. Here, no, no. So your options are now basically B or C. So we need to look at BC versus CB. Now when you look at C, it starts with in response. So in response to what? So you are saying that we need to move towards a different kind of physics. So if this is the response, you need to have a sentence that talks about the challenges of the current physics. And where are those challenges? Those challenges are in sentence A, right? And because the challenges are in sentence A, we would rather keep A and C together, which is happening in option C, and therefore that is going to be our answer. So use the clues, start eliminating, don't think of arranging all of them together, that takes more time. And in an exam like NMAT, for that matter, even the other OMATs that you write, SNAP for instance, CMAT, Maharashtra CET, you won't have Maharashtra CET, you will not have that luxury of time. So here is another para jumble for you. Pause it right here. So in the previous one I used ABCD. There are times when some of these exams use 1, 2, 3, 4. So I thought that okay, let's just make you accustomed to both. Pause the video, answer this, come back, and if possible, time yourself. Ready? Can we start? Okay. So it is akin to knowing. So it is akin to. Akin basically means similar to. So it is. What is similar to knowing everything about sand dunes but not knowing what a grain of sand is made of? So you notice we are basically drawing an analogy in this particular sentence to explain something. Something is being compared with this. So let's see. My path to this dark matter group had begun years earlier. तो ये जो टाइम वाला क्लू है इस पे भी थोड़ा फोकस दे दें. However, when asked to choose from speculative projects that held little to no hope of observational verification, I left the field. Which field? Disillusioned, realizing that I would not find a greater understanding of reality there, where after I graduated in astrophysics and applied mathematics, hoping to study reality at its most fundamental, I considered offers to pursue doctoral research in theoretical cosmology. ओके सो अब सारा कुछ ना कुछ दिख रहा है. देखो जब हम बोल रहे हैं ये जो दिस डार्क मैटर ग्रुप, भाई यहाँ पे कोई डार्क मैटर ग्रुप है ही नहीं, तो मतलब 1, 3 और 4 में तो इसकी रेफरेंस मिलेगी नहीं तो आपको 2 से शुरू करना पड़ेगा. 2 से शुरू करना है तो ए और ई रूल आउट हो गए. इसके बाद में कौन सी फील्ड छोड़ी यार? डॉक्टरल रिसर्च की एक फील्ड ली थी, ये छोड़ी होगी, है ना? तो आपका 3 जो है ये 4 के बाद आना चाहिए. इसमें 3 4 के पहले है. इसमें ठीक है, इसमें भी ठीक है. तो आपके पास बच गया सी और डी. तो बेसिकली 1 कहाँ प्लेस करें? सो व्हाट इज अकिन टू नोइंग? यहां तो इसने छोड़ दिया. तो इट किसी फील्ड की बात करेगा ना, तो फील्ड तो आपके पास 4th में है, थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी, राइट? यहां पे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए इट आ पाए, तो इसलिए 1 आपको यहां डालना पड़ेगा इनके बीच में, एंड दैट इज व्हाट विल मेक सी द बेस्ट आंसर चॉइस. तो मल्टीपल क्लूज ढूंढे, उनसे कनेक्ट किया और अपना काम पूरा, राइट? सो दैट्स हाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू गो अहेड एंड अप्रोच दीज. इसके बाद आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस वेयर यू हैव कोर्स ऑफ एक्शन गिवन. तो एक सिनेरियो देंगे, उस सिनेरियो में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको अचीव करने हैं. उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपके पास कुछ कोर्सेज ऑफ एक्शन है, तो आपको डिसाइड करना है कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सूटेबल होगा. अगर दोनों सूटेबल हैं तो चूज बोथ, कोई भी सूटेबल नहीं है तो चूज नीदर एंड द लाइक्स. ओके, तो चलिए आइए शुरू करें. सो हियर यू गो, क्वेश्चन नंबर 13. पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन एंड देन कम बैक. शुरू करें.
A SaaS firm's outages stem from untested Friday deploys. तो देखो SaaS अगर आपने सुना है तो मतलब ये SaaS बहु वाला SaaS नहीं है, ये सॉफ्टवेयर वाला SaaS है। तो फ्राइडे डिप्लॉयज मतलब इंजीनियर जाते जाते वीकेंड से पहले कोई चीज डिप्लॉय कर गया, कोई कोड इन डाल गया और वो कोड में कुछ गड़बड़ आ गई तो आउटेज हो गई, वो जो पूरा उनका सॉफ्टवेयर है वो क्रैश हो जाएगा। हाँ, तो इसके रीजन क्या है? एक तो ये कि यार वो फ्राइडे को डिप्लॉय करना जब अगले 2 दिन टेस्टिंग नहीं हो पा रही, दूसरा वीक ऑब्जर्वेबिलिटी कि आप चेक ही नहीं कर पा रहे जो डिप्लॉय किया है आपने या जो कोड बनाया है कि वो सही है कि गलत है, उसको चेक करने का तरीका थोड़ा। एंड डिपेंडेंसी ड्रिफ्ट होती होगी कोई चीज। इंडस्ट्री गाइडेंस नोट्स 2 वैलिड पाथ्स डिपेंडिंग ऑन रिसोर्सिंग। तो बोल रहे इसको फिक्स करने के 2 तरीके, built in-house capability with CI, canary/stage rollouts, SLO driven observability and dependency hygiene. I have no idea what these things are because I'm not a software engineer. But then ये GK का टेस्ट तो है नहीं, तो इसकी जरूरत एक्चुअली पड़ेगी भी नहीं, बस ये वर्ड क्या है ध्यान रख लें। Migrate core services to a managed platform that provides robust testing/observability out of box. Teams typically choose one path based on capabilities and timelines. तो करना क्या चाहिए? Invest internally in CI plus automated tests, canaries, staged rollouts, dashboards, automated dependency management. तो ये सारे का सारा तो बेसिकली A है ना, ये तो A है। तो डेफिनेटली ये 2 चीजें करते हैं, A ये रहा और B इनफैक्ट ये रहा, माइग्रेट कोर सर्विसेज टू अ मैनेज्ड प्लेटफॉर्म। तो ये भी ठीक है। तो इसमें ये दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करते हैं। आप कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में वो कंपनी चूज कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन रिसोर्सिंग, बट बोथ ऑफ दीज डू फॉलो फ्रॉम दिस एंड देयरफॉर आवर आंसर हियर विल बी ऑप्शन ई, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो ठीक है, लैंग्वेज कभी कभार चैलेंजिंग होगी, हो सकता है देख करके लगे यार ये बोल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा, बट फ्रैंकली because it is not a test of GK, you don't need to worry much about it. Okay, here is the next question. Once again, why don't you go ahead, pause the video right here, answer it and then we'll talk. All right, so let's go ahead and start. I am a freelance brand designer and I've been missing delivery dates on logo and social kits. तो डिजाइनर्स को कई बार लोग अप्रोच करते हैं ना, भाई हमारे लिए लोगो बना दो, हम अच्छा हमें सोशल मीडिया पे चीजें डालनी है वो डिजाइन बना दो। तो बोला मैं डेडलाइंस मिस कर रहा हूँ, है ना। क्यों? डिलीवरी डेट से जिस डेट पे उसने बोला था मैं डिलीवर कर दूंगा। माई नोट्स शो 2 मेन कल्प्रिट्स। तो ये डिलीवरी डेट्स मिस होने के 2 रीजन। पहला, स्कोप क्रीप फ्रॉम वेग ब्रीफ्स एंड अनलिमिटेड माइनर ट्वीक्स। स्कोप क्रीप क्या होता है? देखो हर एक प्रोजेक्ट का ना एक स्कोप होता है, हर एक के आपको ये सब चीजें करनी है, राइट। जैसे अगर घर बनाने के लिए हमने किसी आर्किटेक्ट को हायर किया तो उसका स्कोप क्या होगा कि भाई तुम नक्शा बना करके दे दो। जैसे हमने ये बोला कि भाई तुम ना मैप ड्रॉ करके दे दो हमको और सारी स्पेसिफिकेशंस के साथ, तो इसका स्कोप ऑफ वर्क है। कुछ आर्किटेक्ट्स को हो सकता है आप बोलेंगे नहीं यार तू ना टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके ये भी इंश्योर कर कि तुमने जो मैप दिया था उसके हिसाब से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो स्कोप डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे जब एजेंसी वाले लोगो सोशल किट्स बोलते हैं ना, ब्रीफ बड़ा वेग देते हैं, उसको बहुत क्लैरिटी से बताते नहीं है उनको क्या चाहिए। वो उसको आकर के बोलेंगे कि यार ऐसा हमें ना इंस्टाग्राम के लिए कुछ कैंपेन दे देना, हमें ना कुछ गूगल के एड्स दे देना और भाई लोगो बना देना। अब वो इंस्टाग्राम पे कैंपेन किस तरह का कितना, वो क्लैरिटी है ही नहीं, राइट। तो उसकी वजह से स्कोप क्रीप मतलब आपको जो काम करना है वो बढ़ जाता है। और फिर अनलिमिटेड माइनर ट्वीक्स, वो हर डिजाइन में छोटी छोटी कोई गलती निकाल कर ये चेंज कर दो ये चेंज कर दो। एंड देन कंटेक्स्ट स्विचिंग अक्रॉस क्लाइंट्स दैट ब्लोज अप फोकस टाइम। तो देखो फोकस टाइम क्या होता है? एक ऐसा ब्लॉक ऑफ टाइम जो आपने किसी एक पर्टिकुलर काम पे फुल फोकस करने के लिए ईयर मार्क करके रखा होता है। जैसे अगर तुमने डिसाइड किया कि मैं 12 से 2 बैठ करके भाई ब्लड रिलेशंस और पजल्स करने वाला हूं, तो तुम्हारा ब्लड रिलेशंस पजल्स का फोकस टाइम है। लेकिन उसी दौरान अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स पढ़ते रहे बीच में तो ध्यान हटता जाता है ना, किसी एक चीज पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि वो एक सिंगल क्लाइंट पे फोकस नहीं कर पा रहा, कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। भाई एक क्लाइंट ने कुछ बोला था, दूसरे ने कुछ, आप एक का काम करते करते रुक के दूसरे काम पे चले गए, तो अब वो सडनली एक डिफरेंट जोन में जाना पड़ेगा। हाँ, अब एक ब्रांड शायद रेस्टोरेंट वाला हो, दूसरा शायद हाई टेक्नोलॉजी हो, तो बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं ना।
तो वो एडजस्ट करने में बड़ा टाइम लग जाता है, फिर आपको वो चेंज करने में मेंटली टाइम लग जाता है, तो होती है कंटेक्स्ट स्विचिंग। इसकी वजह से फोकस टाइम कम हो रहा है। तो अब ये आगे ना सॉल्यूशन भी बता रहा है, डिजाइनर्स वो अडॉप्ट अ स्ट्रक्चर्ड इनटेक प्लस माइलस्टोन साइन ऑफ्स, कि भाई देखो पूरा काम एक साथ डिलीवर नहीं हो रहा है मगर क्लियर कर देंगे, मतलब इतना काम हो गया तो ये हमारा एक माइलस्टोन, इसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर वापस पीछे वाली चीज पे नहीं आएंगे। ऐसे स्टाइल बोर्ड, आपको किस तरह की थीम, किस तरह की वाइब चाहिए काम में, वो मोटा मोटा। देन कॉन्सेप्ट फ्रीज, लिमिटेड रिवीजन राउंड इंस्टेड ऑफ अनलिमिटेड, एंड दे प्रोटेक्ट मेकर टाइम ब्लॉक्स विद नोटिफिकेशन बाउंड्रीज, कि मतलब वो बोलेगा यार मैं इस टाइम तक, लेट्स से मैं ये 2 घंटे काम करता हूँ, इसमें मैं किसी का कॉल नहीं लेता, आपको अभी बता रहा हूँ, हाँ ऐसा, या 5 घंटे काम करता हूँ, whatever. Report more on-time handoffs and fewer rework cycles. Simply working longer hours tends to increase errors and burnout. तो चलिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इस पर्सन के लिए? Introduce a standardized brief plus staged approvals, calendar maker blocks with auto reminders for client feedback deadlines. बिल्कुल करना चाहिए, ये consistent है. Accept all rush requests and extend workdays to late nights so clients never wait. Keeping unlimited revisions to maintain goodwills. लेकिन ये unlimited revisions इसके अगेंस्ट जा रहा है, फिर ये बर्नआउट भी कॉज करेगा, तो ये इज कंसिस्टेंट नहीं है डिलीवरी डेट्स को ऑनर करने के लिए, तो ये हटा दे। तो यहां पे सिर्फ पहले वाला फॉलो करेगा, एंड दैट इज वाई योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। एंड विद दैट लेट मी टेक यू ओवर टू this one more question. Go ahead, give it a shot and then come back, pause करो, solve करो, फिर वापस आओ। Ready? Portfolio studies of corporate R&D indicate that high performing programs spread small bets with clear milestones and exit criteria। कि भाई कंपनी है वो ना मल्टीपल चीज़ों पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाती है। अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो बोलेंगे कि किसी भी एक प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा नहीं लगा रहे, थोड़ा थोड़ा पैसा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं, और उसमें भी क्लियर माइलस्टोन्स एंड एग्जिट क्राइटेरिया है। उनको पता है कि कितने टाइम तक हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटकम। जरूरी नहीं है प्रोडक्ट पूरा डेवलप हो जाए, मगर कितना, एंड एग्जिट क्राइटेरिया के मतलब यार देखो जब ये होगा ना सिचुएशन तो हम एग्जिट कर ही जाएंगे चाहे जो मर्जी लग रहा हो। हाँ, रिसाइकलिंग कैपिटल फ्रॉम फास्ट किल डिसीजंस इनटू द नेक्स्ट वेव। तो इससे क्या होता है, ये जो पैसा है उसमें से फटाफट एग्जिट क्राइटेरिया आया तो फटाफट कॉल ले लिया यार इस प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हैं, और फिर किसी अगली चीज में पैसा लगाते हैं। अब ब्रॉड बजट कट और ओपन एंडेड लैब्स विदाउट माइलस्टोन्स आर एसोसिएटेड विद लोअर हिट रेट्स, यानी कि इनका जो काम है वो उतना अच्छा नहीं होता या उतना यूजफुल नहीं निकलता, एंड वैल्यू लीकेज के आपकी जो वैल्यू है फिर वो भी आप कम जनरेट कर पाते हैं। तो ये डिजायरेबल चीजें, ये अनडिजायरेबल चीजें, राइट। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? स्लैश R&D बजट बाय 30% एंड कॉन्सेंट्रेट रिमेनिंग फंड्स इनटू अ सिंगल मूनशॉट लैब। बट ये तो स्मॉल बेट्स के अगेंस्ट हो गया, तो रूल आउट कर दें। Create an indefinite skunk works unit with no fixed milestones or sunset criteria to avoid stifling creativity। बोल रहे हैं भाई क्रिएटिव लोग हैं, इनको ना पूरा बिना कोई माइलस्टोन के या एंड के एग्जिट क्राइटेरिया के कब बंद करेंगे फंडिंग, करने दो ना काम। बट दैट्स ऑल्सो अगेंस्ट द डिजायरेबल ट्रेट्स। तो यहाँ पे तो कोई भी फॉलो नहीं करेगा, एंड दैट इज व्हाई आवर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। सो दैट इज दैट। सो that's what I had for you today. You know where you can reach me. And before I sign out, here is something for you. Keep moving forward and you'll never have a reason to look back. दिन जैसा भी आए, अच्छा आए बुरा आए, बस एक ही चीज़ है अपने पास और वो है काम करते जाना है। तो अगर काम करते गए, पीछे मुड़ के कब देखते हैं? जब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती तो देखते हैं कहाँ गलती हुई, क्या हुई, देखना ही नहीं पड़ेगा पीछे मुड़ करके, अगर तुम रोज रोज मेहनत करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड आई विल कैच यू गाइस सून। बाय बाय।